A very warm good afternoon to everyone. It is indeed a moment of great pride and privilege for us to welcome His Excellency Shri Gulab Chand Kataria Ji, Honorable Governor of Punjab. His visionary leadership and unwavering commitment to the welfare of Punjab state has been a beacon of hope and inspiration. ಆತ್ಮೀಯ ಸಧರ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುಲಾಬ್ ಚಂದ್ ಕಠಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಗುಲಾಬ್ ಚಂದ್ ಕಠಾರಿಯಾ ದಂಪತಿಗಳವರು ತಮ್ಮ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ Let us take a moment to honor गुलाब चंद जी का जोर से स्वागत करें और राष्ट्रगीत के साथ आज का कार्यक्रम. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. Please play the national anthem. राष्ट्रगीत. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय. The lightning of lamp has a deep symbolic meaning in our country's long culture. It is a lighthouse that calls us to conquer all the obstacles and strive towards the enlightenment. Now I would request all the dignitaries to step forward for lighting the lamp and gracing the occasion. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಭೀಮಾ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 31ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರವರೆಗೆ 1ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಘನತೆವೆತ್ತ ಪಂಜಾಬ್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಗುಲಾಬ್ ಚಂದ್ ಕಟಾರಿಯಾ ದಂಪತಿಗಳವರ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದರ towards the enlightenment. Now I would request all the dignitaries to step forward for lighting the lamp and gracing the occasion. ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಘನತೆವೆತ್ತ ಪಂಜಾಬ್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಗುಲಾಬ್ ಚಂದ್ ಕಟಾರಿಯಾ ದಂಪತಿಗಳವರನ್ನ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. I thank all the dignitaries for gracing the occasion. Now it's my privilege to call upon Dr. Anil Kumar Chawla, Secretary of Vidyaniketan Hubli, to welcome all the dignitaries on the dais. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಕ್ಕಾಗಿ
ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಗಲೇರವರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಂ ನಮೋ ಅರಿಹಂತಾನಂ, ಓಂ ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾನಂ, ಓಂ ನಮೋ ಐರ್ಯಾನಂ, ಓಂ ನಮೋ ಉವಛಾಯಾನಂ, ಓಂ ನಮೋ ಲೋವೆ ಸವಸಾಹೂನಂ. ಓಕೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಭಾಳ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೀಚರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತೆ ಅಂದ್ರೆ 1-2 ತಾಸು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ 108 ಗುಣಧರಾನಂದಿ ಮಹಾರಾಜ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು 405 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸುಮೇರ ಪರ್ವತದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಜೈನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ಸಂತೋಷ, ಸಡಗರ, ಆನಂದ ತರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು 405 ಅಡಿ ಸುಮೇರ ಪರ್ವತವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಈ ವರೂರ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ದೇಶ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಎತ್ತರ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಅದು ವರೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮುನಿ ವರ್ಗ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ವರೂರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೊ ತುಂಬ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಚಾರ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುಣಧರಾನಂದಿ ಮಹಾರಾಜವರು ಈ ಸುಮೇರು ಪರ್ವತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಸಮಸ್ತ ಜೈನ ಸಮಾಜದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗಣಾಧಿಪತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಕುಂತು ಸಹಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ಗುಣಧರಾನಂದಿ ಮಹಾರಾಜರ ಗುರುಗಳು. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವರು ಗುರುಗಳ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ದಾರಿ, ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಗುಣಧರಾನಂದಿ ಮಹಾರಾಜರು ಚಾಚ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ವರೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಗಣಾಧಿಪತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಕುಂತು ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದವರು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಘಟಕ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಶ್ರೀ ಗುಲಾಬ್ ಚಂದ್ ಕಟಾರಿಯಾಜಿ, ಆನರೇಬಲ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವರೂರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ದೂರಿಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸುರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಕಟಾರಿಯಾ, ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸೊ ಸಮಸ್ತ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದಿಂದ
ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸೇನ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಸುಮೇರು ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಮಸ್ತ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮುಗಿದೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಜೈನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ, ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ, ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಗಲೇರವರಿಗೆ ಸರ್ವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. Now it's time to felicitate Honorable Governor of Punjab, Shri Gulab Chand Kataria ji and Srimati Anita Gulab Chand Kataria ji, who is the First Lady of Punjab. I request dignitaries to felicitate Honorable Governor of Punjab. ಇದೀಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ನ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುಲಾಬ್ ಚಂದ್ ಕಠಾರಿಯಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಗುಲಾಬ್ ಚಂದ್ ಕಠಾರಿಯಾ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಮಲ್ ತಾಲಿಕೋಟೆರವರು, ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಕಠಾರಿಯಾರವರನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಗಲೇರವರು ಸತ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇವೆ. Anita Gulab Chand Kataria ji. ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಕಠಾರಿಯಾರವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. Song, music, song. ये घर वीरा स्वामी का पारस बाबा राधिका, इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया कहना, अदेगे वीरों का कहना. Now I request Honorable Governor to felicitate Mr. and Mrs. Chaugla, Secretary of Vidyaniketan, Hubli. ಇದೀಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ನ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಗಲೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಗಲೆ ದಂಪತಿಗಳವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರ 405 ಅಡಿ ಸುಮೇರು ಪರ್ವತದ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿಯ ದಾತಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಗಲೆ ಪರಿವಾರದವರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗೇರವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವ अनिल कुमार चोगले और अनिल कुमार चोगले अब सुमेरु पर्वत गए नहीं, अभी गए कि नहीं सुमेरु पर्वत में? वहाँ भगवान के दर्शन बाद में कर लेना. इन्होंने बहुत बड़ी 13 फुट की मूर्ति का प्रतिष्ठापना किया, इसलिए आपके हाथों से सत्कार किया. जोर से ताली बजा करके सभी सत्कार करें. अनिल कुमार चोगले ಪರಿವಾರದಿಂದ ಅಜರಾಮರ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿತ ಆಗುವಂಥ ಅರ್ಹಂತ ಪ್ರತಿಮಾವನ್ನು ಸುಮೇರು ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ನೀಡ್ರಿ. 8,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ತೀರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ कहाँ नवग्रह तीर्थ, कहाँ अमेरिका, तो भी अपने टाइम को सबको छोड़ करके 11 दिन सपरिवार उनके बच्चे पल और क्या नाम ही यार, हाँ, उनकी श्रीमद श्री
पुत्र आदि सभी आए, जोर से ताली बजा करके आइए, दोनों आए। और मैं चाहूँगा राज्यपाल की धर्मपत्नी अनीता जी कटरिया इंद्रानी और उनके बहुवधि का स्वागत करें। महाराज गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी का महाराज का संघ यहाँ तक जो है संघ का संचालन करते, व्यवस्था करते हुए और कुंतुगिरी के डेवलपमेंट अभिवृद्धि के लिए अतः प्रयास कर रहे हैं। उनको राज्यपाल महोदय के द्वारा स्वागत। सुधीर पाटिल अगर कहीं भी हो, आधा 10 मिनट के बाद कटरे जी का भाषण के बाद हम ही करेंगे। अब कोई काम नहीं, मैं ही बोल देता हूँ, साहेब बोलेंगे, महाराज बोलेंगे, कार्यक्रम खत्म। आगे का महामस्तक मैं बोल लूँगा, आप बोल लेना, उसके बाद महाराज साहब बोल लेंगे। राष्ट्र को वंदन करते हुए हम मस्तक का अभिषेक शुरू कर देंगे। बस वो एडीसी सही है ना? आपकी एडीसी बहुत टाइट है। आइए शुरू करते हैं। कई मुकुरे ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। बोले विश्व प्रभु महावीर भगवान की जयकारा जोराಗಿ ಹಾಕಬೇಕು। अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की। ಎಲ್ಲರೂ ಎರಡು ಕೈ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಜಯಕಾರ ಹಾಕಬೇಕು। बोलो परम पूज्य राष्ट्रांत युवाचार्य गुणधर नंदी जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। बड़ा हर्ष होता है, एक नहीं दो नहीं 2500 किलोमीटर का प्रवास करके गुलाब चंद जी कटरिया महामस्तकाभिषेक के दिन पधारे हैं। हर आदमी अगर 400 किलोमीटर चाहे प्लेन से हो चाहे ट्रेन से आता है तो मुख के अंदर थकान और कमजोरी दिखता है, परंतु 20 उम्र की जैसा ताजापन, गुलाब की तरह खिलता हुआ मुस्कान देख करके मुझे अजीब, और हम अपने आप को ये सोचते कि पहले जमाने के लोग क्या खाए, क्योंकि उनके देख की हंसी देखिए। 80 साल की उम्र है, लगता नहीं 60 साल के हैं, और अपने जीवन के अंदर इतने दौड़ धूप के पूछो मत। मेरे गुरुदेव के पास वो 5-6 बार मिले। मैं जयपुर में अलग से जब चातुर्मास किया, होम मेंटेनेंस थे तब भी मिले, उदयपुर में थे तब भी मैं इनसे मिला, प्रतापगढ़ में मिले मेरे को गुरुदेव के साथ, और अनिंदा पार्श्वनाथ मिले, चित्री में मिले, सागवाड़ा में मिले, औरूर में पिछली बार 2007 के अंदर मस्तकाभिषेक हुआ था, विधानसभा के अध्यक्ष थे तब वो, मुझे याद है। मैं उस समय यहाँ नहीं था, मैं कहीं कार्यक्रम में गया था। मैं नहीं होते हुए भी यहाँ दर्शन के लिए आके दर्शन करके चले गए थे। अगर पूरी 22-25 जो प्रदेश है, उन 25 प्रदेशों के अंदर, भारत देश के प्रदेशों के अंदर अगर सबसे पहला धर्मवान अगर कोई राज्यपाल है तो हमारे कटरिया जी, और मोदी ने चुन चुन करके राज्यपालों को चुना है। अधिकतम जो राज्यपाल है, कोई गुटखा नहीं खाता है, कोई बीड़ी नहीं पीता है, कोई दारू नहीं पीते, क्या सारे व्यसनों से रहित है। और हमें अभिमान है जैन धर्म के एक व्यक्ति तो राज्यपाल पद पर पोस्ट पर बैठा है, ये सबसे बड़ा अभिमान है हमें। भारत देश के अंदर हम मुख्यमंत्री तो नहीं बना सकते, और ध्यान रखना इनको राज्यपाल किसी जैन समाज के कारण नहीं मिला। जैन लोग राजस्थान वाले सोचे होंगे कि जैन इसलिए मिल गया, जैन होने से नहीं मिला, ये आरएसएस के कट्टर समर्थक है। और घर घर में, राजस्थान के नगर नगर में, राजस्थान के गली गली में
बीजेपी का डंका बजा करके और बीजेपी का झंडा पेगा करके वहां जो है अपने अधित्व और जय बीजेपी का अस्तित्व का स्थापना करने का राज्यपाल का स्थान मिला है। ये अपने बल से इनको मिला है, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ा व्यक्तित्व शक्ति क्या है, इनके पास क्या है ऐसा चमत्कार। एक तो ये सरल मना है। क्या है? सरल मना। अगर छोटा बच्चा भी जाएगा तो उतने ही भक्ति से बात करते, बड़ा गया तो उतनी ही भक्ति से भावना करते। और कितना ही बिजी है, अभी पूछो तो अभी इनके आने का टाइम नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी पास है। 26 जनवरी सबसे ज़्यादा राज्यपालों के पास, राष्ट्रपतियों के पास बहुत बड़ा काम रहता है, क्योंकि भारत का गौरव बढ़ाने का काम रहता है। उतना बिजी होते हुए 2500 हम इसके गए थे, हैदराबाद गए, हैदराबाद से इस इतना में पूरा प्रवास करने का कारण एक में गुरु का दर्शन। और इनकी जब जब भी मैं बात करता हूँ, अगर मैं कई बार बात होती है, आए एक बार हजारों बार बात होती इनसे मेरी। जब भी बात करूँ महाराज, अगर मैं 100 बार बात करूँगा 300 बार आपका नाम लेते हो। इतना आपके प्रति ಭಕ್ತಿ और ಭಾವನಾ है। ನಾ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 100 ಸಭೆಯವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದಾಗ 100 ಸಭೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ आचार्य गणाधिपति गणेंद्राचार्य कुंसर का 300 बार नाम लेते। इतने गुरु के प्रति समर्पित है, धर्म के प्रति समर्पित है। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, हमेशा ही बोलता रहता हूँ, इसलिए मैं कटरे से कहूँगा, आप इतने दूर हमारे लिए आए, बहुत बहुत हम नवग्रह तीर्थ से भावना भाते हैं कि आपका आरोग्य स्वस्थ हो, आप और धर्म का, देश का, राष्ट्र का नाम ऊंचा करे। और आज तक कई नेता आए और कई नेता समाप्त हो गए, परंतु हमें गर्व है, हमारे समाज पर गर्व है कि एक छोटा सा दाग गुलाब चंद कटर के ऊपर नहीं है। निस्संक, निर्मल, पवित्र रूप जो है राजकारण में उनने किया। और सही पूछो तो इनको मुख्यमंत्री का भी मौका था। राजकारण बड़ा टेढ़ा खीर होता है, परंतु उनका परिश्रम का फल राज्यपाल प्राप्त हुआ। मैं अभिनंदन करता हूँ कटरे जी का। आपका व्यक्तित्व, आपका विकास नित्य निरंतर होता रहे और इनका स्थानमान भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ा था। और जब जब जिस पोस्ट पर रहे, अभी तो राज्यपाल है, किसी पक्ष से कोई संबंध नहीं रखते हैं, बट जहाँ भी जिस पोस्ट पर रहे बहुत अच्छा काम किए। और कहें जो पंजाब एक देश का मुकुटमणि है, पंजाब देश का भक्ति का प्रतीक है, पंजाब हमारे भारत के लिए गौरव का विषय है। ऐसे जिस पद पर उपस्थित है वहाँ का भी नाम अमर और गौरवपूर्ण करेंगे, ऐसी भावना बोते इनकी और हमारे बीच में ज़्यादा न अंतर लेते हुए आमंत्रित करता हूँ, अपनी 2 बात रखे। ಇದೀಗ ಪಂಜಾಬ್ನ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುಲಾಬ್ ಚಂದ್ ಕಠಾರಿಯಾರವರು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಶುಭ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ। भगवान आदिनाथ के चरणों में शत वंदन, 24 तीर्थंकर के चरणों में शत वंदन, भगवान महावीर के चरणों में शत वंदन। और आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गणाधिपति कुंतु सागर जी महाराज के दर्शन करने का मेरा भाग्य से मुझे सौभाग्य मिला। मैं गुरुजी जब से आपसे मैं देखा हूँ, जब से आपसे मिला हूँ, मैं राजनीति के क्षेत्र में ज़रूर काम करता हूँ, पर अगर ठीक चला हूँ तो उसका कारण आपका आशीर्वाद है, तो मुझे जीवन में ठीक चला रहा। मैं केवल इसलिए यहाँ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं मन से कह रहा हूँ
कि वास्तव में मेरा सौभाग्य मिला कि राजनीति में जब से काम कर रहा हूँ, आप जैसे गुरु चरणों में आने का मेरा सौभाग्य प्रभु कहीं न कहीं से उपलब्ध करा देता है। और उसके कारण से मैं संस्कारों के पावन हाउस से जुड़ा रहता हूँ। और जब कभी भी कोई गड़बड़ शड़बड़ होती है तो फिर गुरु चरणों में आता हूँ तो मेरी सफाई हो जाती है, फिर मैं अच्छा आदमी बन जाता हूँ। इसलिए आपका तो मैं हजारों बार भी वंदन करूँ ना। और मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे ही ज़िले के, और जब आप मैं सोचता हूँ वहाँ आपका चातुर्मास था, तब मैं आपका अड़िंदा पारसनाथ में कई कार्यक्रमों में आया था। वास्तव में आज आपकी कृपा के कारण से आपने देखा है कि गुणधर नंद जी जो महाराज आपके शिष्य हैं, उन्होंने ऐसा कमाल करके दिखाया जो इन वर्षों में कम से कम हमारी 70-80 साल की उम्र है, हमें इस प्रकार का स्थान देखने का सौभाग्य एक साथ नहीं मिला जो यहाँ है। वास्तव में कोई न कोई गुरु कृपा के बिना कोई सफलता जिंदगी में नहीं मिलती है। तो मैं आचार्य गुणधर नंद जी के भी चरणों में वंदन करता हूँ। आज इतनी एक तरह से आस्था की मूर्तियाँ यहाँ विराजमान हैं, माता जी यहाँ विराजमान हैं, और सबसे ज़्यादा तो मैं इस स्थान को जिन सब कार्यकर्ताओं ने, जिन सब लोगों ने मिलकर के इसको इस स्वरूप में लाए, कईयों के नाम जानता हूँ, कईयों को नहीं भी जानता हूँ, पर मैं उनको वंदन करता हूँ जिन्होंने महाराज जी के निर्देश के अनुसार एक ऐसा स्थान बनाया है जो आप और मेरे जाने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी तक लोग संस्कार लेकर के जीवन को कैसे जीना ये सीख पाएंगे। तो इस स्थान की जो पवित्रता है वो इस कारण से भी है। श्रवण बेलगोला जरूर मैं गया था, वहाँ महासभिषेक के अंदर मैं सम्मिलित हुआ, पर वास्तव में वैसा का वैसा एक नया स्थान भगवान पारसनाथ का आपने यहाँ जिस रूप में कायोत्सर्ग मूर्ति के रूप में जो खड़ा किया है, जब मैंने आपका एक कागज़ पढ़ा तो लगा कि 61 फीट लंबा, 48 फीट इसका प्लेटफार्म, 109 फीट लंबी। मैं सोचता हूँ यह पहली एक ऐसी आपने भगवान पारसनाथ को यहाँ विराजमान किया है जो आपका और मेरा जीवन का उद्धार नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ तक जीवन का उद्धार करेगी। ये हमारा सौभाग्य है। आप सब धर्म प्रेमी भाई बहन यहाँ आए हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। क्यों कि मैं राज्यपाल के नाते नहीं हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। कुंतु सागर जी, मैं एक श्रावक हूँ आपका। आपके पास रह कर के जो कुछ मैंने सीखा है उसको करने का प्रयास किया है। मैं आज भी अपने आप को इस पद से अपने आप को नहीं मानता हूँ, पर मैं ऐसे चरणों में रहने का ईश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया है, इसलिए मैं आज इस स्थान पर हूँ। तो वास्तव में मैं सोचता हूँ कि ये जिस प्रकार का आपने, पता नहीं ये जंगल में क्या स्थापित हो गया है, मैं सोचता हूँ आने वाली पीढ़ियाँ इस स्थान से बहुत कुछ सीख करके आगे बढ़ेगी। ऐसा स्थान आपने यहाँ निर्माण किया है। वास्तव में इसमें सहयोग करने वाले छोटे बड़े सभी भाइयों का भी अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ऐसे कामों में जब तक संपूर्ण समाज और सब लोगों की सहयोग नहीं मिलता है तब तक वो इस रूप में खड़ा नहीं होता है। तो मैं सोचता हूँ ये जो भगवान महावीर के 5 महाव्रत हैं जो दुनिया समझ रही है और भविष्य में समझेगी, और कहीं कोई शांति अमन चैन मिलेगा नहीं, चाहे जितना भटकना हो भटक लो, लेकिन ये जो हमारा मार्ग है वो वास्तव में मैं सोचता हूँ कि हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अनेकांतवाद, हम इस जिद पे नहीं है कि मैं कह रहा हूँ जो ही सही है। अगर दुनिया ये मान लेना कि सामने वाला कह रहा उसको भी सुन लूँ, उसके बाद में भी कोई अच्छी होगी तो स्वीकार कर लूँ, अपनी घमंड से अकड़ के नहीं अमचूर हूँ, तो ये शांति, विश्व में शांति स्थापित होगी तो इसी एकमात्र रास्ते से होगी। ये जो हमारे यहाँ मैं सोचता हूँ कि अपरिग्रह
ये अपरिग्रह ही आपको, ये आपकी शिक्षा के कारण से ये लोग जो अपनी कमाई हुई संपत्ति को विसर्जित करते हैं ना, ये अपरिग्रह का ही एक उदाहरण है कि आदमी किस प्रकार से अपनी संपत्ति का सदुपयोग करके आने वाली पीढ़ियों को इस दिशा में ले जाने का बात करता है। सुमेरु पर्वत के बारे में मैंने दुनिया ने बहुत कुछ सुना, लेकिन ये जो एक नया आपने इस वरुण गांव में, इस क्षेत्र में जिस प्रकार का ये जो खड़ा हुआ है ना, ये आने वाला इतिहास बताएगा कि वास्तव में गुणधरानंद जी आपने वास्तव में अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर के जिस प्रकार की कल्पना को साकार किया। और जब कभी भी कोई ऐसा अच्छा काम करते हैं तो संकट आए बिना तो संभव रहता ही नहीं। संकट ही व्यक्ति को सफलता दिलाता है। ऐसा भगवान राम 14 वर्ष तक वनवास नहीं जाते ना, तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो राम नहीं बन सकते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने इसलिए कि उन्होंने 14 वर्ष तक हर परीक्षा में निपुण होकर के निकले। उनके गुणों के कारण से उनको है ना भगवान के स्वरूप में माना। जब पैदा हुआ था माँ की कोख से, तब भगवान का स्वरूप नहीं था, लेकिन व्यक्ति अपने आप का विकास करता जाता है, उस रास्ते पर आगे बढ़ता जाता है। आज ये जो कुछ भी मूर्तियाँ यहाँ बैठी है, आप और हम कितने भाग्यशाली है कि सारा जीवन का तप और साधना करते हैं ये, और हमको उसका मक्खन निकाल करके देते हैं कि इसको थोड़ा चख लो तो अच्छा रहेगा। अब उसमें से कौन कितना चखता है ये अपने अपने पर निर्भर करता है। पर मैं सोचता हूँ कि कितना भी लोहा सख्त को एक छोटी सी हथौड़ी से भी बार बार जब मार करते हैं ना, तो कुछ न कुछ उसमें से तोड़ ही देता है, उसमें ताकत उसमें होती है। तो मैं सोचता हूँ यह जो प्रयत्न हुआ है, यह वास्तव में अपने आप में मुझे बहुत प्रसन्नता। मैं एक विद्यार्थी, एक अध्यापक रहा हूँ। गुरुजी, आपका जो सोच है कि आपने शिक्षा से आने वाली पीढ़ी को जोड़ने का प्रयत्न किया, यहाँ प्राइमरी स्कूल से लेकर के ठेठ मेडिकल कॉलेज तक की जितनी शिक्षा, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, पता नहीं आपका कहाँ कहाँ से सोच गया कि आपने यहाँ के लोगों के जीवन को संस्कारित करने का भी प्रयत्न किया। और इसी कारण से आपने देखा होगा समाज का हर वर्ग आपका मान और सम्मान करता है। तो इस कारण से करता है कि यहाँ बच्चा केवल शिक्षा नहीं प्राप्त करता है, यहाँ संस्कार प्राप्त करता है। इस देश में अगर कोई कमी रह गई 75 वर्ष की आज़ादी में, हमने शिक्षा तो दी है, बहुत अच्छे बच्चे हमारे निकले हैं, पर हमने संस्कारों का ध्यान नहीं रखा। उसके कारण से आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वो उसके कारण से कर रहे हैं। पर आपने पहले से ये विद्यालय के शिक्षा के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को तैयार करने का प्रयास किया। मैं सोचता हूँ कि आज आपका ये जीवन बना है, तो ये भी आपने देखा होगा 24 तीर्थंकरों की जीवन के कारण से आपने देखा होगा हमारे हर एक तरह से तीर्थंकर ने किसी न किसी पेड़ के नीचे तपस्या करके केवल ज्ञान की प्राप्ति की है। इसका मतलब ये प्रकृति से सबसे ज़्यादा कोई प्रेम करता है तो वो आपके जैन दर्शन को मानने वाला करता है। हमने यहाँ ना प्रकृति की हर चीज़ की पूजा की है। हमने पत्थर पूजा, हमने नदी पूजी, हमने पहाड़ पूजे हैं, हमने पेड़ पूजे हैं। जीव जो है छोटा हो या बड़ा हो, हमें बचपन में सिखाते थे कि गर्मी के दिनों में जो कीड़ियाँ निकलती है, कब मकोड़े निकलते हैं, वहाँ केवल एक कटोरी कसार लेकर के जाना और हमको देते थे। उस समय हमें समझ में नहीं आता था कि हमारी ये दादी ये क्यों कहती है रोज़ कसार डालने जाना, पर अब समझ में आता है ये कसार के 2 दाने अपने गरीबी में भी किसी जीवन के लिए, किसी प्राणी के लिए अगर उसका जीवन बचाया जा सकता है, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है वो किसी बड़ी से बड़ी सेवा से नहीं होता है। ये जो संस्कार डाले गए ना, ये डाले गए इसी प्रकार से। वास्तव में मैं जब मुझे आदेश हुआ था कि गुरुजी, मैंने कहा यार मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, गुरुजी के दर्शन तो ज़रूर करूँगा। मैंने आपका कार्यक्रम पहले तय किया, बीच में एक कार्यक्रम फंस गया और उसके कारण से यात्रा लंबी हो गई। कोई दिक्कत नहीं, जहाँ गुरुजी का आशीर्वाद है वह सब आनंद ही आनंद है, कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका ये श्रावक, आपका ये शिष्य राजनीति में रहते हुए भी एक काला धब्बा जिंदगी में कभी लगा नहीं, लगने देगा नहीं। यही हमारी संपत्ति है। और मैं सोचता हूँ इस कारण से आज वास्तव में इस स्थान की भव्यता को देखकर मुझे दोबारा रहना पड़ेगा और मैं आकर के संतोष से इस सारे स्थान का दर्शन करूँगा। आज तो क्योंकि मेरा फ्लाइट पहले से ही तय था 6 बजे, 6:30 बजे वापस जाना है,
तो मैं उतना समय नहीं रह पाऊँगा, पर आपके बिना बुलाए, आपके बिना निमंत्रण दिए, ये मेरे एक श्रावक का धर्म है कि ऐसे पवित्र स्थानों को दर्शन करे, कुछ सीखे, कुछ करने का सोचे। मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। ये कितने दिन रहेगी इसका भी अता पता नहीं। जो कुछ कर सकते हैं करने का प्रयास पूरी ताकत के साथ करेंगे। इतना आपके चरणों में वंदन करता हूँ। और कुंतु सागर जी, आपसे आशीर्वाद इस बात का चाहता हूँ कि बड़ा पद मिले ना मिले कोई चिंता नहीं। मैं एक अच्छा श्रावक हूँ, अच्छा श्रावक रह करके मरना चाहता हूँ, बस इतना चाहता हूँ। और कुछ मिले ना मिले, ये ज़रूर मुझे मिले और गुरु कृपा से ज़रूर मिलेगा। अब तक का मेरी यात्रा बिना किसी अड़चन से पार हो गई, उसका कारण भी ये गुरु भगवंतों का ही आशीर्वाद है मेरे पर। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आप सब धर्म प्रेमी बंधुओं को भी नमस्कार करता हूँ कि आज आपने बुलाकर यहाँ जो सम्मान किया, मंच पर जो बैठे लोग हैं जिनका मैंने सम्मान किया, वास्तव में सम्मान तो मुझे करने लायक हूँ, क्योंकि मैं भी आपके समाज का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। मेरा भी धर्म बनता है कि समाज के इतने कामों में जिस प्रकार से आप सब लोगों ने सहयोग किया, वो निश्चित रूप से मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ कि वास्तव में ये जो कल्पना कहाँ से आई। आपने 2005 से इस अभियान को शुरू किया और आज 20 साल पूरा हो गया, जनवरी से जनवरी 20 साल तक निहर इसमें चलते आज किस स्थान पे पहुंचा दिया। अब आज भी लाखों लोग दर्शन करने आते हैं और आगे ये कई लोग दर्शन आएंगे। ये पर्यटन स्थान नहीं बनाना है, ये धार्मिक आस्था का स्थान बनाना है। पर्यटन स्थान नहीं चाहिए हमको, जो हमको कुछ ज़िंदगी में दे सके वो स्थान हमें चाहिए, जिसके कारण से हम यहाँ कुछ न कुछ सीख के जाएं, कुछ समझ के जाएं कि आखिर ये मूर्तियाँ जो सामने दिख रही है, इन्होंने जीवन में क्या प्राप्त किया। वो भी हम जैसे ही मनुष्य थे, कोई अलग तो थे नहीं। जब वो अपने आप को इतना ऊपर उठा सकते हैं तो 2 कदम तो हम भी उठाने का प्रयत्न कर ही सकते हैं ना। तो मैं सोचता हूँ रास्ते पे चलो, रास्ता कब पार होगा इसका कोई अता पता नहीं होगा, लेकिन मंजिल तय करके प्रयत्न करो, प्रभु आपकी मदद करेगा। और भगवान महावीर ने जिस उपदेश को दिया है वो आप और मैं जानता हूँ। कई लोग मुझे कहते हैं कि आप लोग जैन लोग रात को नहीं खाते। मैंने कहा हम वैज्ञानिक आदमी हैं, दुनिया की सारे वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया कि सूर्यास्त के पहले खाया हुआ भोजन पचेगा, उसके बाद खाया हुआ भोजन पेट में पड़ा रहेगा, जो बीमारी का जनक बनता है और बीमारी का कारण बनता है। तो मैं सोचता हूँ ये जो हमको संस्कार दिए ना, ये इस तरह से नहीं दिए। अगर अब धीरे धीरे सारे डॉक्टर, दुनिया के डॉक्टर इस लाइन पर आ रहे हैं कि 6 बजे से पहले भोजन कर लो, और अब उसको लोग पालन करते जा रहे हैं। मतलब मैं सोचता हूँ हम बहुत भाग्यशाली है कि आपने हमको बहुत पहले ये लाइन दे दी, जिसके कारण से हम इधर बढ़ गए। तो एक बार फिर आप सब आयोजकों का, विशेष करके पुनरानंद जी आपका बहुत ही, कि वास्तव में आपने किस कल्पना के आधार पर अपने गुरु का आशीर्वाद देकर के इस जगह को खड़ी की है, जहाँ लंबे समय तक समाज प्रेरणा लेकर के अपने जीवन का उद्धार करने का रास्ता तय करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका सभी चरणों में वंदन। सभी सामने विराजे हुए मेरे माता पिता, बड़े भाई, आप सबको भी प्रणाम। और सबसे प्रार्थना है कि मैं सोचता हूँ कि जिस जगह पर आज हम हैं, कुछ तो कुछ अपने मन में तय करके जाए कि हमें आगे का जीवन कैसा जीना है। भगवान महावीर के चरणों में शत-शत वंदन। बहुत सुंदर। मैं जब तक रहूं तब तक निष्कलंक रहूंगा, और जब भी अंत हो परमात्मा के चरण, गुरु के चरणों में जाए। ऐसे सद्भावना भाने वाले हमारे धर्म राज्यपाल गुलाब चंद जी कटरिया को जोर से ताली बजाते अभिनंदन करें। और अगली बार जल्दी आए और 2-3 दिन यहाँ रहे, ऐसी अपेक्षा करते हुए धन्यवाद। सुधीर पाटिल जी का, राज्यपाल उस टाइम आए नहीं थे, इनका एक सत्कार करेंगे और उसके बाद राष्ट्रगान। सुधीर पाटिल जी ये गणाधिपति गणेंद्राचार्य संघ जी का व्यवस्था करते हुए यहाँ लाए और अच्छे कार्यकर्ता है, और कुंतुगिरी का पूर्ण जो है अभिवृद्धि के लिए एक विशेष सहायक है। आइए
और हमारे वीरेंद्र हेगड़े के भाई सुरेंद्र हेगड़े भी आए हुए, उनका भी स्वागत। नवग्रह तीर्थ वरुण नया इतिहास रचाने वाला है, 400 फीट से भी ऊंचा बना सुमेरु निराला है, 400 फीट से भी ऊंचा बना सुमेरु निराला है, जिसकी ऊंचाई ने सबको ही अचरज में डाला है, जिसकी ऊंचाई ने सबको अचरज में डाला है, 400 फीट से भी ऊंचा बना सुमेरु निराला है, 400 फीट से भी ऊंचा बना सुमेरु निराला है। नवग्रह तीर्थದ ರಾಜ ಜಗದಗುನಿ ಮಹಾತೇಜ ವರೂರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸ ಕರದಿ ಹಾರಿಸು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದೆವು ಭಕ್ತಿ ಕಾಯ ಕೊಟ್ಟು शांति सागर महाराज की शांति सागर परंपरा के सप्तम पट्टाधीश आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज यहाँ पधारे हैं। दिल्ली से लंबे यात्रा के बाद और बीच में समडोली में चातुर्मास करके यहाँ आए, और उसके संघपति संघ से व्यवस्थापक आहार के बिहार के श्री राकेश भाई बड़ौदा गुजरात को बहुत बहुत आशीर्वाद, उनके कारण इतना प्रवास हुआ, उनको बहुत बहुत धन्य देते हुए थैंक्स, साधुवाद। Now it's time to express our deepest gratitude to all the delegates on the dais. For this, I would like to call upon Dr. S.A. Srinivas, Principal, AGM College of Pharmacy, to convey vote of thanks. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು AGM ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡಿವೋಟೀಸು ಪ್ರಜೆಗಳು ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಸಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುಣಧರಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಸುಮೇರು ಪರ್ವತ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಣೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕಾರಿಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಉಳಿಲಿ ಅಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಕುಂತು ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ವೃಂದರಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶ್ರೀ ಗುಲಾಬ್ ಚಂದ್ ಕಟಾರಿಯಾ ಜಿ, ಹಾನರಬಲ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಅವರು ಹಸನ್ಮುಖರಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ सबको आपने उत्तेजित किया, उसके लिए सभी के तरफ से आपको धन्यवाद. ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಕಟಾರಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಇವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಗ್ಲೆ ದಂಪತಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕೇಟಿಸಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. अभी पहले महाराज का प्रवचन सुन लेते, उसके बाद राष्ट्रगीत. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈಕ್. Stand mic. आइए. आइए, हाथ जोड़े, शांति के साथ बैठे. महाराज से का प्रवचन
जय बोलो 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम गुरुदेव आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की जय। हाँ देखिए, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारे पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद जी कटारिया राजस्थान के हैं और एक क्षेत्र को देखने के लिए, दर्शन के लिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लेने के लिए और मेरे से मिलने के लिए यहाँ पर पधारे। बड़ी गौरव की बात है। ये गुलाब चंद जी कटारिया एक सामान्य पुरुष नहीं है, हमारे बंधु सरीके तो है ही, लेकिन इनका हमारा करीब करीब पांचवी बार यहाँ इनका हमारा मिलन हुआ। सोचिए, धर्म सबके लिए है, सब कोई उसका पालन कर सकता है। उसी मार्ग पर निर्व्यसन और समाज की सेवा करने वाले अगर भारत में ये नेता अगर हैं तो सिर्फ गुलाब चंद कटारिया हैं। इनके समान नेता निर्व्यसनी आपको कहीं दिखाई नहीं देगा और सच्चे दिल के हैं, अच्छे हैं, जनता की सेवा करते हैं और देश की सेवा करते हैं। राजस्थान में कई पद इन्होंने प्राप्त किया है और अभी राजनीति के अंदर उनका उत्कृष्ट स्थान है और पंजाब के गवर्नर होकर के और वहाँ का पंजाब का सुधार, पंजाब का वातावरण ठीक करने के लिए पूरा का पूरा प्रयत्न करते हैं। ध्यान में रखिए, जो अपना जीवन के अंदर सदाचरण पालन करता है उसका प्रभाव प्रत्येक जनता के ऊपर पड़ता है। इसलिए सदाचरण जीवन के अंदर परम आवश्यक है। हमारा देश, हमारा धर्म मात्र जो क्या है, थ्योरिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल अपने जीवन के अंदर जो सदाचरण चारित्र निर्माण करके संयम के मार्ग पर चलता है वही उच्च स्थान को प्राप्त होता है। इसलिए आप यहाँ पर पधारे और ये सारा का सारा दृश्य अगर आपको दिखाई देता है, भारत के अंदर प्रत्येक जगह कहीं पर भी आपको नवग्रह की स्थापना देखने को कहीं नहीं मिलेगी, मात्र वरुण पर मिलेगा। 65 फुट के पार्श्वनाथ भगवान भारत के अंदर कहीं नहीं मिलेगा, मात्र वरुण क्षेत्र पर मिलेगा। अभी पूरे भारत के अंदर ये पृथ्वी पर कहीं पर भी घूम लो, 405 फुट का अगर सुमेरु पर्वत दिखाई देगा तो मात्र वरुण क्षेत्र पर दिखाई देगा। ये सारा का सारा विवरण जो है मैंने आपको दिया है। हमें ये सारा का सारा देख करके गौरव होता है कि हमारा एक शिष्य ऐसा भी है जो संसार के अंदर देश के लिए, जनता के लिए, शिक्षण के लिए हर एक प्रणाली के अंदर अग्रसर होकर के, और ये मूर्तिमत स्थापन जो आपको दिखाई दे रही है, इनका सत प्रयत्न रहता है कि हमेशा देश का व्यक्ति जो क्या है, भारत का स्थान ऊंचा रहे, उसका सिर ऊंचा रहे। इसीलिए सबका सहायता लेकर के इन्होंने साधुओं का, संतों का, मठाधीशों का, भट्टारकों का, सारे नेताओं का, मोदी जी से लगा करके और सारे जितने भी हमारे भारत के नेता हैं सबका सहारा लेकर के, सबका सहयोग लेकर के, और उनका सहयोग प्राप्त हुआ और उनका जो उनको सहायता दिया और उसी हिसाब से ये सारा कार्य बना है। मैं तो गुरु हूँ, गुरु होने के नाते शिष्य ही अपने गुरु का नाम ऊंचा करता है, पुत्र ही अपने पिता का नाम ऊंचा करता है। अगर पुत्र जो है निकटू रहेगा तो पिता का नाम भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए मेरे जितने भी सारे शिष्य हैं, एक से एक बढ़ करके ऊंचे स्थान पर प्राप्त हैं। ये सब बैठे हुए हैं, सब शिष्य वर्ग, और बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है। इन्होंने देश के लिए, जनता के लिए, धर्म के लिए सब कुछ किया हुआ है। इसलिए एक स्थान, सबसे बड़ा गौरवान्वित स्थान जो है हमारे शिष्य आचार्य राष्ट्र संत गुणधर जी महाराज साहब का है। इन्होंने जो क्या है कुंतु सागर का नाम ऊंचा किया है और सब जगह जो है कुंतु सागर का नाम फैला है। बड़ा गौरव महसूस होता है। मैं आप सब लोगों को, हमारे सौभाग्यवती अनीता जी कटारिया और उनके जो पति परमेश्वर हैं
गुलाब चंद जी कटारिया यहाँ पर पधारे। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन पूर्वक उनको आशीर्वाद देता हूँ। आप दीर्घायु हों और देश और जनता का कल्याण करें और धर्म को कभी नहीं छोड़े। और अंतिम आपकी जो लाइन थी कि मैं जो है जैन धर्म के हिसाब से अंतिम 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 समाधि मरण सांतरा जिसको कहते हैं, समाधि मरण करते हुए नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए शरीर को संसार को छोड़ दूं, ये आपकी भावना अवश्य सफल होगी, अवश्य सफल होगी। किसी साधु संतों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपका मरण भी उसी प्रकार का होगा। आशीर्वाद आशीर्वाद आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। महावीर भगवान की। ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोलो भारत माता की। चलिए अब सभी लोग महामस्तकाभिषेक का पहला कलश शुरू होगा।